محترم ناظرین السلام علیکم۔ روشن ٹی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ خبرنامے کا آغاز کرتے ہیں حدیث مبارکہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت کے دن سب سے پہلے بندے سے اس کی نماز کا حساب لیا جائے گا۔ نماز مومنوں پر مقررہ وقتوں پر فرض ہے۔ نماز برے اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ نماز کی درستگی بقیہ اعمال کی بھی درستگی ہے اور نماز کی خرابی بقیہ اعمال کا بگاڑ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ محبوب عمل وقت پر نماز کی ادائیگی ہے۔ نماز دنیا کے غموں اور بلاؤں سے راحت کا سبب ہے۔ اللہ رب العزت نمازوں کے ذریعے سے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ نماز اللہ رب العزت کے ساتھ سرگوشی کا ذریعہ ہے۔ نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت ہے۔ نماز جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کا سبب ہے۔ نماز دنیا اور آخرت میں نور ہے۔ نماز کا ترک کرنا چھوڑنا کفر ہے۔ جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والے سے اللہ تعالیٰ بری الذمہ ہے۔ نماز بندے کے ایمان اور کفر و شرک کے درمیان حد فاصل ہے۔ ترک نماز نمازوں کو چھوڑنا جہنم میں ایک وادی ہے، وادی سقر میں داخلے کا سبب ہوتا ہے، داخلے کا سبب ہے۔ آغاز کرنے سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کے اہم سرخیوں پر۔ متحدہ ضلع میں گنیش تہوار کا جوش و خروش کے ساتھ اہتمام۔ ریاستی وزیر ویملا پرشانت ریڈی نے ان کے گھر پر مٹی گنیش لاتے ہوئے کی خصوصی پوجا۔ ضلع صدر جمیعت علماء حافظ علی خان کی سیاست میں آمد۔ کسی بھی سیکولر جماعت سے ایم ایل اے امیدوار منتخب کرنے کا مطالبہ۔ ضلع کے مختلف علماء کرام نے آج مشاورتی اجلاس کے بعد تائید کا کیا اعلان۔ متحدہ ضلع ایم ایل سی کے کویتا کی جانب سے جاری خواتین ریزرویشن بل کے لیے جدوجہد سے کانگریس حلقے میں ہلچل۔ ماحول کی حفاظت ہر ایک کا فرض۔ شہر و مضافاتی علاقوں میں ہزاروں کی تعداد میں مٹی گنیش کی تقسیم۔ وہ اب جی ٹی پی ایل K6 روشن ٹی وی دفتر پر مٹی گنیش کا قیام قابل ستائش اور آج کی گئی خصوصی پوجا کے ذریعے تہوار کا کیا گیا آغاز۔ مرکزی الیکشن کمیشن کی 3 اکتوبر سے ریاست کا دورہ۔ اکتوبر کے دوسرے ہفتے میں اسمبلی انتخابات سے متعلق انتخابی اعلامیے کی اجرائی کے امکان۔ ضلع کے مختلف حلقوں میں کانگریس بھروسہ کے تحت اجلاس کا اہتمام۔ کئی اہم شخصیات نے کی شرکت۔ اب بڑھتے خبروں کی تفصیل کی جانب۔ آنے والے انتخابات میں حافظ علی خان بحیثیت امیدوار۔ سیاسی رہنما، علماء، حفاظ، ائمہ مساجد، مؤذنین شہر کا متفقہ فیصلہ۔ شہر کے ایک پرائیویٹ فنکشن ہال میں موجودہ حالات میں سیاسی لائحہ عمل طے کرنے کی غرض سے ایک مشاورتی اجلاس منعقد ہوا، جس میں شہر نظام آباد کے تمام علماء کرام نے باتفاق آراء طے کیا کہ ہم اب کسی سیاسی لیڈر کے پیچھے جانے کے بجائے اپنا ایک سیاسی قائد کا خود انتخاب کریں گے۔ اجلاس میں کئی ایک تجاویز پر غور و خوض کرتے ہوئے شہر کے متحرک و فعال سماجی کارکن حافظ علی خان کو اپنا سیاسی رہنما طے کیا گیا۔ انشاءاللہ آئندہ انتخابات میں حصہ داری کے لیے مزید باہمی مشاورت سے بہت جلد فیصلہ لیا جائے گا۔ اس موقع پر مہمان خصوصی مولانا خواجہ کلیم الدین اسدی نے اپنی پرزور تائید کے ساتھ اکابر علماء کے سیاسی کارناموں کا تذکرہ کیا۔
مفتی سعید اکبر امام و خطیب جامع مسجد سرپرست اجلاس نے کہا کہ ضلعی اور شہری سطح پر ایک سیاسی قائد کا ہونا ضروری ہے۔ حافظ لئی خان اس میدان کے لیے بہت موزوں اور مناسب ہے۔ مولانا خضر احمد خان صدر اجلاس نے بھی اپنی تائید کا اعلان کرتے ہوئے مبارکباد دی۔ شہر کی نامی گرامی علماء کرام نے اس پروگرام میں شرکت کرتے ہوئے تقاریر پیش کی اور ہاتھ اٹھا کر تائید کا اعلان کیا۔ مولانا رضوان قاسمی، مولانا غلام رسول قاسمی، مولانا عابد قاسمی، مولانا ارشد علی قاسمی، مولانا مبین قاسمی، حافظ اصغر رحمانی، حافظ عبدالحکیم، حافظ اشرف علی، حافظ فیاض، مولانا عظمت سعید، مولانا ہاشم بیگ، مولانا ارشد متین، مولانا عبدالقدیر حسامی، مفتی شفیع، مولانا غلام رسول، مفتی طلحہ، مولانا عبدالعلیم، حافظ ذاکر، مولانا ابرار، مفتی سہیل قاسمی، مفتی ابراہیم، مفتی جابر و دیگر فلاحی تنظیموں کے ذمہ داران بھی موجود رہے۔ جلسے کی نظامت مولانا عبدالقیوم شاکر القاسمی نے کرتے ہوئے کہا کہ اب جو پارٹی اپنے آپ کو سیکولر ثابت کرنا چاہتی ہے وہ آگے آئے اور حافظ لئی خان کو ٹکٹ دے اور اپنی پارٹی کو مضبوط بنائے۔ 2024 کے الیکشن اور انتخابات آنے والے ہیں، اس سلسلے میں ضلع نظام آباد کی طرف سے اور نظام آباد کے قرب و جوان کے علماء کی طرف سے اس وقت جو ہے ایک مشاورت کی نشست یہ ہوئی ہے کہ ہم سب علماء اور حفاظ حافظ لئی خان صاحب کو کسی بھی سیکولر پارٹی کی طرف سے ٹکٹ دلا کر اس میں الیکشن لڑنے کے لیے نام پڑھا، اور یہ حافظ لئی خان صاحب اپنے مقامی علماء کے ہی مشورے سے جو بھی تجویز پیش ہوگی اس اعتبار سے عمل کریں۔ تو آج کی اس نشست میں حافظ لئی خان صاحب کو پیش کیا گیا ہے اور ان کو منتخب کیا گیا ہے، لہٰذا آنے والے حالات کے اعتبار سے کام کیا جائے۔ ایم ایس او کے چیئرمین نے لیبیا کی سفارت خانے جا کر ہولناک سیلاب پر کیا اظہار تعزیت۔ مسلم اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن آف انڈیا کے چیئرمین ڈاکٹر شجاعت علی قادری نے آج دارالحکومت نئی دہلی میں واقع لیبیا کے سفارت خانے میں جناب محمود اجویری سے ملاقات کر کے لیبیا میں سیلاب زدگان کے تئیں ہمدردی کا اظہار کیا اور سیلاب سے ہلاک ہونے والوں کے لاحقین کے ساتھ اظہار تعزیت کیا۔ ڈاکٹر شجاعت علی قادری نے کہا کہ اس وقت لیبیا میں آنے والی آفت انتہائی ہولناک اور بھیانک ہے جس کی تاریخ میں نظیر نہیں ملتی۔ لیبیا میں سیلاب سے ڈیم ٹوٹ گئے ہیں، عمارتیں پانی میں بہہ گئی ہیں اور مشرقی ساحلی شہر درنا کا 1/4 حصہ صفحہ ہستی سے مٹ گیا ہے۔ اس وقت پورے شہر اور آبادیاں زیر آب ہے جبکہ کئی محلوں کی رہائشوں کو سیلاب سمندر میں بہا کر لے گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس مشکل وقت میں ہم لیبیا کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، سیلاب سے ہلاک ہونے والوں کے اہل خانہ اور لیبیا کے عوام سے تعزیت اور اظہار ہمدردی کرتے ہیں اور زخمیوں کے جلد صحت یابی کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ تلنگانہ کی تشکیل کے طریقہ کار پر وزیر اعظم مودی نے پھر ایک مرتبہ جتائی ناراضگی۔ وزیر اعظم ہند نریندر مودی نے آج پھر ایک مرتبہ تلنگانہ کو نامناسب انداز میں تشکیل دینے کا الزام لگایا ہے۔ پارلیمنٹ کے خصوصی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ اس پرانی پارلیمنٹ میں کچھ کڑوی یادیں بھی وابستہ ہیں۔ تلنگانہ کی تشکیل کے بعد منقسم آندھرا پردیش اور نئی ریاست تلنگانہ دونوں نے بھی جشن نہیں منایا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے پیر کو پرانی پارلیمنٹ میں نئی ریاستوں کی تشکیل کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ کی ریاست کے حق کو چھیننے کی بہت کوشش کی گئی، بہت خون بہایا گیا اور تلنگانہ بننے کے بعد نہ تو تلنگانہ نے جشن منایا اور نہ ہی آندھرا پردیش نے جشن منایا، نفرت کے بیج بوئے گئے۔ کچھ کڑوی یادیں وہ بھی ہیں کہ تلنگانہ کے حق کو دبوچنے کے لیے بھاری پریاس ہوئے، خون کی ندیاں بھی بہی اور بننے کے بعد نہ تلنگانہ اتسو منا پایا نہ آندھرا اتسو منا پایا، ایک کٹوتا کے بیج بو دیے گئے۔ اچھا ہوتا اسی امنگ اور اتساہ کے ساتھ ہم تلنگانہ کا نرمان کرتے تو ایک نئی اونچائی پر آج تلنگانہ پہنچ چکا ہوتا۔
मरकजी इलेक्शन कमीशन 3 अक्टूबर से रियासत का दौरा करेगा। अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में असम्बली इंतखाबात से मुताल्लिक़ इंतखाबी इलामी की जारी का इम्कान। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर रियासत तेलंगाना मिस्टर विकास राज के बमौजिब मरकजी इलेक्शन कमीशन का एक वफद 3 अक्टूबर से अपने 3 रोज़ा दौरे पर हैदराबाद आएगा। मज़कूरा वफद रियासत में मुनक़िद होने वाले असम्बली इंतखाबात के इंतज़ामात का जायज़ा लेगा। पहले दिन सेंट्रल इलेक्शन कमीशन के मेंबरान, एक्साइज, इनकम टैक्स, ट्रांसपोर्ट और बैंकर्स के ओहदेदारों के साथ इजलास मुनाकिद करेंगे। वो इंतखाबात में सियासी जमातों की जानिब से शराब, रकम और दीगर तहफ़ की तकसीम को रोकने के लिए ज़रूरी इक़दामात पर जायज़ा लेंगे। इसी तरह इलेक्शन कमीशन का वफद कौमी और इलाकाई जमातों के कायदीन या नुमाइंदों से भी मुलाकात करेंगे। दूसरे दिन पुलिस कमिश्नरों के साथ मीटिंग होगी और ज़िलेवार इंतखाबी इंतज़ामात का जायज़ा लिया जाएगा। अपने दौरे के तीसरे दिन चीफ सेक्रेटरी तेलंगाना शांति कुमारी, डीजीपी अंजनी कुमार और दीगर सीनियर अफसरान से मरकजी इलेक्शन कमीशन का वफद मुलाकात करते हुए रियासत में पुरअमन इंतखाबात की इनेकाद और ज़रूरी इक़दामात के मुतालिक जायज़ा मुनाकिद करेगा। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन का वफद नए वोटर्स और माज़ूर व मामूर वोटर्स से भी मुलाकात करते हुए इनके मसाइल से आगाही हासिल करेगा। क़ियास लगाया जा रहा है कि मरकज़ी इलेक्शन कमीशन के कायदीन की हैदराबाद आमद दरअसल रियासत में इंतखाबी इलामी के जायज़े से मुताल्लिक़ है और माह अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में रियासती असम्बली इंतखाबात के ज़िमन में इंतखाबी इलामिया जारी हो सकता है। कांग्रेस CLP लीडर व MLC रियासत बिहार डॉक्टर मदन मोहन की आलमुर आमद व कांग्रेस की स्कीमात से अवाम को करवाया वाकिफ। कांग्रेस पार्टी जो वादे करती है इसे पूरा करती है। रियासत तेलंगाना की अवाम बखूबी जानती है झूठा वादा कौन करता है। कांग्रेस CLP लीडर व MLC रियासत बिहार मदन मोहन ने आलमुर का दौरा करते हुए अपने ख्यालात का इजहार किया। इन्होंने आगे बताते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी की जानिब से सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने कल हैदराबाद में तेलंगाना के लिए जो डिक्लेरेशन पेश किया है, कर्नाटक, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश इन रियासतों की तरह अमली जमा पहनाया जाएगा। कांग्रेस पार्टी जो वादा करती है इसे पूरा करती है। रियासत तेलंगाना की अवाम बेहतर जानती है झूठा वादा कौन करता है और इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया इससे अच्छी तरह वाकिफ़ है। इन्होंने अवाम से अपील की कि इस मरतबा कांग्रेस पार्टी का साथ दे। इस इजलास से सीनियर कायद कांग्रेस ज़िले निज़ामाबाद ताहिर बिन हमदान ने मुखातिब करते हुए कहा कि रियासत तेलंगाना की 119 असम्बली हल्क़े जात में कांग्रेस डिक्लेरेशन की तशरीह का आगाज़ किया गया और ये डिक्लेरेशन कॉपी को हर मकान को पहुँच कर दिया जाएगा। और आगे बताया कि डिक्लेरेशन महालक्ष्मी ख़वातीन को हर माह 2500 रुपये एजाज़िया, 500 रुपये पकवान गैस, TSRTC बस में ख़वातीन मुफ्त सफ़र की सहूलत, रैतु भरोसा के तहत लिस्ट ज़मीनी हासिल करने वाले किसान को 15,000 किसान मजदूर के लिए हर साल 12,000 रुपये की फ़राहमी अमल में और किसानों को बोनस के तौर पर 12,000 रुपये, 3 गृह ज्योति के तहत 200 यूनिट मुफ्त बरखी, इंदिरा घर के तहत मकान ना रहने वाले ख़ानदान को राज़ी, तुलबा के लिए 5 लाख रुपये तक तालीमी इमदाद, जियोता के तहत 4,000 रुपये एजाज़िया, 10 लाख रुपये राजीव आरोग्य श्री के तहत इलाज। इस प्रोग्राम में अखलाती कायदीन माजिद, मोहम्मद अली, टाउन सदर हबीबुद्दीन, साई बाबा गौड़, चंद्र मोहन, वेंकटेश, विनय कुमार रेड्डी, राजेंद्र व दीगर मौजूद। पूरा वो चे वादा पूरा। आज तक मैं तेलंगाना वाले का बात नहीं करूँगा। अब विरोधी जो बात करेंगे तो विरोधी मेरे पक्ष में थोड़े बात करेंगे। मान लियो कोई अच्छा भी काम किए हो तो हम नहीं बोलेंगे। आप अपने मन से पूछिए, मेरी बात छोड़ दीजिए। हम कांग्रेस के हैं, हमारी बात छोड़ दीजिए। तेलंगाना में कोई नेता है। ज़हनी माजूर शख्स की जान को एक पुलिस मुलाजिम ने बर वक्त तिब्बी इमदाद फ्राहम करते हुए बचाई। भीमगल में पेश आया वाक़या। गुज़िश्ता चंद यौम से ज़हनी तौर पर माजूर शख्स भीमगल के बाबापुर इलाके में गश्त कर रहा था और आज दिन के औक़ात में ये शख्स खेतों में कीचड़ में पड़ा हुआ पुलिस कांस्टेबल सुरेश को नजर आया, जिसके बाद इन्होंने इनके ईसाई हरी बाबू को इसकी तला दी और फिर इसको पानी नहलाकर साफ करते हुए इसके कपड़ों को तब्दील किया और मुकामी शख्स अतीक की मदद से ऑटो में हॉस्पिटल को मुंतकिल करते हुए इसकी सेहत का जायज़ा हासिल किया और डॉक्टर से इसकी सेहत व दिमागी हालत के बारे में तबादले ख्याल किया। इनकी इस कारकर्दगी पर गाँव की अवाम ने इनकी सताइश की। ख़वातीन की रिजर्वेशन के लिए जद्दोजहद करने वाली BRS कायद व MLC के कविता की जद्दोजहद रंग लाई।
पार्लियामेंट में जारी खुसूसी इजलास के पेश नज़र ख़वातीन रिजर्वेशन बिल पेश किए जाने के इम्कानात थे। इस माह की 20 तारीख को बिल के ताल्लुक से बहस होगी। इसी के मद्देनज़र पार्लियामेंट में आज खुसूसी इजलास का आगाज़ अमल में लाने के ताल्लुक से हम सब वाकिफियत रखते हैं, जो कि कल से नए तामीर शुदा भवन में इजलास मुनक़िद होगा। पार्लियामेंट में ख़वातीन रिजर्वेशन बिल को मुतारफ़ करवाने के लिए MLC के कविता की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है। वो मुल्क में कई करोड़ ख़वातीन की हिमायत में दिल्ली के जंतर मंतर पर हड़ताल का इनेकाद अमल में लाने की ख्वाहिश की, जिसके लिए सियासी इख्तिलाफात को बाजू रखते हुए तमाम अफराद मुत्तहिद होकर महिला रिजर्वेशन बिल पर दबाव डालने के ताल्लुक से मुख्तलिफ सियासी जमातों से दरख्वास्त की। चिट्टापुर देहात में अखिलती बिरादान व ख़वातीन ने बालकुंड हल्के के उम्मीदवार रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी की हिमायत में करारदाद की मंजूरी अमल में लाई। चिट्टापुर देहात में अखिलती बिरादान व ख़वातीन ने आइंदा मुनक़िद होने वाले इंतखाबात में बालकुंडा हल्के के BRS पार्टी उम्मीदवार रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी की हिमायत में कुल 33 अफराद ख़ानदान की जानिब से करारदाद की मंजूरी अमल में लाते हुए इस करारदाद से मुताल्लिक़ा कॉपी को मुकामी सरपंच वनाजा गोवर्धन गौड़ व TRS प्रेसिडेंट को हवाले किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत के बरसर इख्तिदार पर आने के बाद रियासती वज़ीर आला कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव की कामयाब क़ियादत, रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी की कामयाब नुमाइंदगी के सबब अवाम की ज़रूरियात की तकमील हुकूमत तेलंगाना की जानिब से नाफिज करदा स्कीमात के समरात से तमाम तबक़ात के अवाम को रास तौर पर फैज़याब किया जा रहा है और मंडल से मुताल्लिक़ा मौज़ूआत में कई तरक्याती कामों के लिए फंड्स की फिलपुर मंजूरी अमल में लाई गई, जिससे तमाम मौज़ूआत में तरक्याती कामों को तेज़ रफ्तार के साथ मुकम्मल करते हुए मुकामी अवाम को सहूलियात पहुँचाई जा रही हैं। रियासती वज़ीर इमारत और शौरा वेमुला प्रशांत रेड्डी की काविशों के सबब KCR हुकूमत की जानिब से रूबे अमल में लाए जाने वाले फलाई स्कीमात के समरात से तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को मुस्तफ़िद करवाए जा रहे हैं और ऐसा कोई घर नहीं है जो कि तेलंगाना हुकूमत की स्कीम से मुस्तफ़िद नहीं हुआ हो। इन्होंने कहा कि साबिक़ा हुकूमत के इख्तिदार में ना होने वाले कई तरक्याती कामों के अलावा ज़ेर-ए-इल्तिवा कामों को KCR हुकूमत के बरसर इख्तिदार पर आने के फौरी बाद न सिर्फ तरक्याती कामों को तेज़ी के साथ मुकम्मल किया जा रहा है, बल्कि ज़ेर-ए-इल्तिवा कामों को भी जल्द अज जल्द पाए तकमील पर पहुँचाया जा रहा है। KCR हुकूमत के दौर इख्तिदार में मुआशरे के गरीबों, कमज़ोरों और गरीबों की फलाह व बहबूद के लिए रियासती हुकूमत ने रैतु बंधु, रैतु बीमा, कल्याण लक्ष्मी व शादी मुबारक स्कीम के अलावा KCR किट, न्यूट्रिशन किट, भेड़ों की तकसीम, मुफ्त फिश फ्राई की तकसीम, दलित बंधु, BC माली इमदाद और गृह लक्ष्मी जैसे स्कीमों को नाफिज करके न सिर्फ तमाम समाज के इज़्ज़त नफ्स को बढ़ाया है। इन्होंने कहा कि तेलंगाना रियासत की 77 साल तरक्की चीफ मिनिस्टर KCR की क़यादत में हुई, जिससे बिला लिहाज मज़हब व मिलत तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को मुख्तलिफ फलाई स्कीमात के समरात से फ़ायदा पहुँचाया जा रहा है और मंडल के तमाम मौज़ूआत में अवाम को सहूलियात पहुँचाने से मुताल्लिक़ा कई तरक्याती कामों को तेज़ी के साथ मुकम्मल किया गया है, जिससे रियासत तेलंगाना के अवाम BRS हुकूमत के तई काफ़ी मुतमईन है। इसलिए आइंदा मुनक़िद होने वाले असम्बली इंतखाबात में KCR हुकूमत की जानिब से नामज़द उम्मीदवारों को कामयाब बनाते हुए बालकुंडा हल्के के BRS पार्टी उम्मीदवार रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने के ताल्लुक से आज करारदाद की मंजूरी अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में TRS यूथ प्रेसिडेंट M अनिल, सुरेश सायना, शेख सलीम व दीगर ने शिरकत की। भीमगल मंडल के जगरियाल देहात में डंडोरा मादिगा संगम के कुल 40 अफराद ख़ानदान ने रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी की हिमायत में करारदाद की मंजूरी अमल में लाई। भीमगल मंडल के जगरियाल देहात में डंडोरा मादिगा संगम के कुल 40 अफराद ख़ानदान ने आइंदा मुनक़िद होने वाले असम्बली इंतखाबात में बालकुंडा हल्के के BRS पार्टी उम्मीदवार रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी की हिमायत में करारदाद की मंजूरी अमल में लाई। इस मौके पर इन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौर इख्तिदार में रियासती वज़ीर आला KCR की कामयाब क़यादत वो रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी की काविशों के सबब तेज़ रफ्तार से होने वाले तरक्याती कामों के अलावा
रियासती हुकूमत की जानिब से नाफिज करदा स्कीमात से तमाम तबक़ात के अवाम को रास्त तौर पर फैज़याब करने के बाइस आज भीमगल मंडल के जगरियाल देहात के डंडोना मादिका संगम के कुल 40 अफराद ख़ानदान ने आइंदा मुनक़िद होने वाले असम्बली इंतख़ाबात में BRS पार्टी के उम्मीदवार रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने के ताल्लुक़ से करारदाद की मंजूरी अमल में लाने का इजहार किया और कहा कि बालकुंडा हल्के के मुख्तलिफ मंडलों से मुताल्लिक़ा मौज़ूआत में CM KCR की रजामंदी के तहत कई तरक्याती कामों को करोड़ों रुपए के मसारत से तेज़ी के साथ मुकम्मल किया गया है। इन्होंने कहा कि कई हुक्मरान आए और चले गए, लेकिन TRS हुकूमत के बरसर इख्तिदार पर आने के फौरी बाद जो तरक्याती काम अंजाम दिए गए हैं, इसे अवाम ताहयात तक याद रखेंगे। रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी की कामयाब नुमाइंदगी के सबब भीमगल मंडल के जगरियाल देहात में अवाम को सहूलियात पहुँचाने के मकसद के तहत CC रोड ड्रेनेज के तामीरी कामों के अलावा कंपोस्ट शेड की तामीर के लिए कई करोड़ों रुपयों की मंजूरी अमल में लाते हुए तामीरी कामों को मुकम्मल किया गया, जिससे अवाम BRS हुकूमत से काफ़ी मुतमईन है। इन्होंने मज़ीद कहा कि आइंदा मुनक़िद होने वाले इंतख़ाबात में अवाम के चहीते क़ायद रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने के लिए हर एक शख्स अपना वोट कार के निशान पर देकर BRS पार्टी के उम्मीदवार रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने के ताल्लुक़ से ख्वाहिश की। इस प्रोग्राम में PRS के सीनियर कायदीन G प्रसाद, मौज़े के सदर गंगाधर गौड़, M श्रीनिवास, MPTC सुमलता राजेश, नायब सरपंच श्रीकांत, सीनियर कायद राजा मलू लक्ष्मी राजा गौड़, संगम के बुजुर्ग कायदीन मूर्ति, रघुपति, लक्ष्मण, संगम के अराकीन श्रीनिवास, BRS पार्टी के कायदीन कारकुनान के अलावा अवामी नुमाइंदे मौजूद थे। एरपली मंडल के मुकाम पर मुकामी एम्प्लॉयमेंट एसोसिएशन के ज़ेर एहतिमाम मिट्टी गणेश मूर्तियों की फ़राहमी अमल में लाई गई। एरपली मंडल के मुकाम पर मुकामी एम्प्लॉयमेंट एसोसिएशन के ज़ेर निगरानी में हर साल की तरह इस साल भी मुकामी मुलाजमिन की जानिब से मिट्टी गणेश मूर्तियों की मुकामी अवाम को फ़राहमी अमल में लाई गई। इस मौके पर इन्होंने कहा कि माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर एक फ़र्द अपनी इज्तिमाई ज़िम्मेदारी के तहत मिट्टी गणेश मूर्तियों की तनसीब अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में ZP नायब सदर रजिता यादव, संगम के सदर राजा लिंगम, सेक्रेटरी किशोर कुमार व दीगर मुलाजमीन ने शिरकत की। వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు। ఇక్కడికి వచ్చిన పెద్దలకి, పిన్నలకి, పత్రికా సోదరులకు అందరికీ ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు। ఈ వినాయకులను గ్రామ ప్రజలకు పంచితే మరి ఏదైతే పర్యావరణ హితమే ప్రజాహితం అని చెప్పేసి మరి వారు ఒక మంచి కార్యక్రమం తీసుకొని ముందుకు రావడం జరిగింది। सर्व शिक्षा अभियान मुलाजमिन ने इनसे मुताल्लिक़ मुतालबात को हुकूमत हल करने के लिए अनोखे तरीके से एहतजाजी धरना मुनक़िद किया। ज़िले निज़ामाबाद के मुकाम पर वाक़े धरना चौक पर गुज़िश्ता 17 यौम से इनेक़ात अमल में लाए जाने वाले प्रोग्राम के तहत सर्व शिक्षा अभियान मुलाजमिन ने इनसे मुताल्लिक़ा मसाइल को CM KCR के हाथों हल करवाने के लिए आज अनोखे तर्ज पर एहतजाजी धरना मुनक़िद किया। इस प्रोग्राम में सर्व शिक्षा अभियान मुलाजमिन व दीगर ने शिरकत की। సమగ్ర శిక్షా ఉద్యోగుల సంఘం ఆధ్వర్యంలో ఈ యొక్క రిలే నిరాహార దీక్షలు 17వ రోజు చేరుకున్నాయి। ఈరోజు మా యొక్క పండగలు కానీ మా యొక్క వాస్తవానికి ఈరోజు పండగ చేసుకోవాల్సి ఉంది, కానీ మా యొక్క ప్రభుత్వం గత 17 రోజుల నుంచి నిరసన వ్యక్తం చేస్తున్న रियासती हुकूमत की जानिब से मुतारफ़ करदा डबल बेडरूम स्कीम के तहत इख्तितामी मरहले में तामीर होने वाले मकानात का RTC चेयरमैन व रूरल MLA बाजरेड्डी गोवर्धन ने लिया जायजा। दरपली मंडल के मुकाम पर तूफानी दौरा करने वाले रियासती RTC चेयरमैन व रूरल रुकन असम्बली बाजरेड्डी गोवर्धन ने दरपली मंडल के मुकाम पर रियासती हुकूमत की जानिब से शुरू किए गए स्कीम डबल बेडरूम मकानात की तामीर के तहत आज मंडल में इख्तितामी मरहले में तामीर होने वाले मकानात का जायज़ा लिया। वो तामीरी कामों को फिलफुर मुकम्मल करने के लिए कॉन्ट्रैक्टर को अहकामात जारी किए। बातज़ा RTC चेयरमैन व रूरल MLA बाजरेड्डी गोवर्धन, दरपली ZPTC मेंबर बाजरेड्डी जगन मोहन ने हाल ही में 100 बिस्तरों के हॉस्पिटल के लिए मंजूर किए गए फंड्स के तहत गवर्नमेंट हॉस्पिटल का मुआयना किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौरे इख्तिदार में CM KCR की कामयाब दूरंदेशी की वजह से अवाम की ज़रूरियात से मुताल्लिक़ फलाई स्कीमात को
कामयाबी के साथ रूप अमल में लाए जा रहे हैं और इसी मकसद के तहत अवाम के ज़ाती घर के ख्वाब को हकीकत में तब्दील करने के लिए रियासती हुकूमत की जानिब से बावखार तरीक़े से शुरू किए गए डबल बेडरूम मकानात स्कीम के ज़रिए बेघर अफराद ख़ानदान को डबल बेडरूम मकानात की फ़राहमी अमल में लाई जा रही है और अवाम सतह गुरबत से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को मियारी इलाज मुआवजा फ़राहम करने के लिए CM KCR ने CM रिलीफ फंड स्कीम को मुतारफ़ किया, जिसके तहत आज मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला अफराद इनसे मुताल्लिक़ा अमराज का खानगी हॉस्पिटल में मियारी तिब्बी इमदाद हासिल कर रहे हैं, जिसके लिए दरकार अखराजात की अदायगी CM KCR की जानिब से मुतारफ़ करदा CM रिलीफ फंड स्कीम के तहत रकमी इमदाद फ़राहम की जा रही है और अवाम को कॉर्पोरेट तर्ज के तौर पर बेहतरीन इलाज व मुआवजा फ़राहम करने के लिए शहर और मंडल से मुताल्लिक़ा मौज़ूआत में बस्ती दवाखानों का क़याम अमल में लाने के अलावा प्राइमरी हेल्थ सेंटर को क़ायम किया गया है, जहाँ पर अवाम को मुफ्त तशख़ीस करते हुए मुफ्त अद्वियात की फ़राहमी अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में ज़िले के नौजवान क़ायद, ज़िले परिषद मनसूबा बंदी मेंबर व दरपली ZPTC मेंबर बाजीरेड्डी जगन मोहन, मुत्तहदा ज़िले के DCMS चेयरमैन सांबारी मोहन, मुकामी MPDO नला सादिका हनुमंत, मुकामी सरपंच बाला राजू, VDC चेयरमैन राजेश्वर, रैतु सामान्य समिति सदर राजपाल रेड्डी, जनरल सेक्रेटरी गोपाल नायक, यूथ मंडल सदर रंजित चिन्ना रेड्डी व दीगर ने शिरकत की। विनायक चौहती के पेश नज़र रियासती RTC चेयरमैन व रूरल MLA बाजीरेड्डी गोवर्धन व ज़िले के नौजवान क़ायद, दरपली ZPTC मेंबर बाजीरेड्डी जगन मोहन ने ज़िले के मुकाम पर वाक़े रिहाइशगाह में ख़ुसूसी पूजा पाठ अंजाम दी। विनायक चौहती त्यौहार के पेश नज़र TSRTC चेयरमैन व रूरल रुकन असम्बली निज़ामाबाद बाजीरेड्डी गोवर्धन व ज़िले के नौजवान क़ायद, दरपली ZPTC मेंबर बाजीरेड्डी जगन मोहन ने ज़िले के मुकाम पर वाक़े रिहाइशगाह में ख़ुसूसी पूजा पाठ अंजाम दी। इस प्रोग्राम में मुत्तहदा ज़िले के DCMS चेयरमैन सांबारी मोहन, नोडा चेयरमैन ईगा संजीवा रेड्डी, चक्रानपल्ली मंडल के MP के विमला राजू, पुलिस मुलाजमीन व मुख्तलिफ महकमे जहाँ से ताल्लुक़ रखने वाले अहदेदारान मौजूद थे। गुज़िश्ता 8 यौम से रियासत में 70,000 आंगनवाड़ी मुलाजमीन की जानिब से इनेक़ात अमल में लाए गए हड़ताल को रियासती वज़ीर आला की तर्ज अमल की सख्त मज़म्मत व इनसे मुताल्लिक़ा मसाइल को हल करने के लिए CPI ML प्रजा पंथा कायदीन ने किया हुकूमत से मुतालबा। आंगनवाड़ी मुलाजमीन की जानिब से गुज़िश्ता 8 यौम से रियासत में हड़ताल का इनेक़ात अमल में लाते हुए इनसे मुताल्लिक़ा मसाइल को हल करते हुए आंगनवाड़ी मुलाजमीन को मुस्तक़ल करने वो इन्हें कम अज़ कम उजरत 26,000 रुपये ग्रेट्युटी रूबे अमल में लाते हुए रिटायरमेंट बेनिफिट के अलावा पेंशन में इजाफा करने का मुतालबा करते हुए आमर तहसीलदार दफ्तर पर जारी हड़ताली कैंप में CPI ML प्रजा पंथा कायदीन ने हिमायत फ्राहम की। इस प्रोग्राम में कायदीन देवाराम, PDSU कायदीन नरेंद्र, दुर्गा प्रसाद व दीगर ने शिरकत की। అంగన్వాడీ ఆయాలు, అంగన్వాడీ టీచర్లు, ఉద్యోగులు తమ న్యాయమైన డిమాండ్లైన కనీస వేతనం 26,000 రూపాయలు ఉండాలని, అట్లాగే शहर के सुभाष नगर में वाक़ GDPL K6 रोशनी TV दफ्तर पर विनायक चौहती त्यौहार के पेश नज़र K6 स्टाफ की जानिब से ख़ुसूसी पूजा पाठ अंजाम दी गई। ज़िले के सुभाष नगर में वाक़ GDPL K6 रोशनी TV दफ्तर पर विनायक चौहती त्यौहार शानदार पैमाने पर मुनाक़िद किया गया, जिसमें मशहूर मारूफ पंडित चिटकला श्रीनिवास शर्मा की जानिब से ख़ुसूसी पूजा पाठ अंजाम दी गई, जिसके तहत GDPL K6 डायरेक्टर चामाकुरा राजेंद्र रेड्डी के अहले खाना ने पहले ख़ुसूसी पूजा अंजाम देकर विनायक त्यौहार का आगाज़ अमल में लाया। बातज़ा मशहूर मारूफ पंडित चिटकला श्रीनिवास शर्मा ने मुखातिब करते हुए कहा कि माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर एक फ़र्द मिट्टी से तैयार करदा गणेश मूर्तियों के इस्तेमाल करने की ख्वाहिश के। इस प्रोग्राम में केबल ऑपरेटर्स, GDPL K6 समा ब्रॉडबैंड नेटवर्क के मुलाजमीन व दीगर ने शिरकत की। विनायक चौहती त्यौहार के पेश नज़र रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने बालकुंडा हल्के के वेलपुर मंडल में वाक़े रिहाइशगाह में ख़ुसूसी पूजा पाठ अंजाम दी। आज से विनायक चौहती त्यौहार का आगाज़ अमल में लाए जाने के मौके पर रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने बालकुंडा हल्के के वेलपुर मंडल में वाक़े रिहाइशगाह में ख़ुसूसी पूजा पाठ अंजाम दी और अवाम को गणेश त्यौहार की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की। इख्तिताम से हम नज़र डालते हैं आज के सुर्ख़ी पर। मुत्तहदा ज़िले में गणेश त्यौहार का जोश व खरोश के साथ एहतमाम। रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने उनके घर पर मिट्टी गणेश लाते हुए की खुसूसी पूजा।
जिले सदर जमीयतुलमा हाफिज लई खान की सियासत में आमद, किसी भी सेकुलर जमात से एमएलए उम्मीदवार मुंतखब करने का मुतालबा। जिले के मुख्तलिफ उलमा कराम ने आज मशावरती इजलास के बाद तायद का किया ऐलान। मुत्तहदा जिला एमएलसी की कविता की जानिब से जारी खवातीन रिजर्वेशन बिल के लिए जद्दोजहद से कांग्रेस हल्के में हलचल। माहौल की हिफाजत हर एक का फर्ज। शहर व मज़ाफ़ाती इलाकों में हजारों की तादाद में मिट्टी गणेश की तक़सीम व GTPL K6 रोशन टीवी दफ्तर पर मिट्टी गणेश का क़याम काबिल सताइश और आज की गई खुसूसी पूजा के जरिए त्यौहार का किया गया आगाज़। मरकजी इलेक्शन कमीशन की 3 अक्टूबर से रियासत का दौरा। अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में असम्बली इंतखाबात से मुताल्लिक़ इंतखाबी इलामी की इजराई के इम्कान। जिले के मुख्तलिफ हलकों में कांग्रेस भरोसा के तहत इजलास का एहतमाम, कई अहम शख्सियात ने की शिरकत। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।